So, hello English learners. This is the 25 day and 60 days of English speaking challenge. So, yes, from yesterday we are learning about the prepositions. So, like we all know, preposition is so important, and there are lots of prepositions which we have to know in details. So, there will be 3 classes only for preposition. So, this is the second class for preposition where we are going to learn about the in, into, between, among, and inside and outside. Yes, so all these prepositions we are going to learn today. So let's start. This is day 25. If you are learning, if you are watching the videos for every day, so this is going to be beneficial for you to speak better English. So yes, this is not going to give benefit only watching one video or 2 video. You have to watch from the day 1 to 30 days. Yes, because we are going to learn everything for spoken English, which you have to pay the money to learn all these things, but we are learning for free. Okay, so let's start the preposition class second. Yes, so first the definition. What is the definition of preposition? Preposition simply means it shows the relationship between noun and pronoun. नाउन और प्रोनाउन के बीच में ये एक रिलेशनशिप शो करता है, इसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. ठीक है, ए वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और रिलेशनशिप शो करता है, उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं. ठीक है, दो लोगों या दो चीजों के बीच में हाँ रिलेशनशिप बताता है. सो लाइक सपोज इफ आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जांपल, देयर इज ए मंकी ऑन द ट्री. पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ है. ठीक है, सो देयर इज अ मंकी ऑन द ट्री. सो पेड़ पर एक बंदर बैठा है. पेड़ पर एक बंदर और पेड़ के बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है जो कि है इन. देयर इज ए मंकी ऑन द ट्री. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन हमने देख लिया, डेफिनेशन क्या है, उसको उसका यूज क्या है, कितने सारे प्रीपोजिशंस हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजों को हम देख रहे हैं. ठीक है, सो प्रीपोजिशन सिंपली मींस some words, there are some words which shows the relationship between noun and pronoun. So there is a monkey on the tree is like showing relationship between monkey and tree. So the water in the bottle, the water is in the bottle. जो पानी है वो वाटर जो है वो बॉटल के अंदर. there is the water is in the bottle. पानी बॉटल के अंदर है. ठीक है, सो सपोज आई एम गोइंग टू टेक सम एग्जांपल्स. वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट इन एंड इनटू. यस, सपोज इन एंड इनटू. इन एंड इनटू. So if I'm going to take one example, the water is in the bottle. The water is in the bottle. Okay, the water is in the bottle. जो पानी है वो बॉटल के अंदर है. ठीक है, हमने इन यूज किया जो कि रिलेशन बताता है वाटर और बॉटल के बीच में. सो इन एक प्रीपोजिशन है जो कि हमने यूज किया. नाउ द सेकंड एग्जांपल, आई एम पोरिंग द वाटर इनटू द बॉटल. आई एम pouring. I am pouring the water into the bottle. Okay, so these are the second sentences, 2 sentences which we make using in and into. ठीक है, so 2 sentences हमने बनाए हैं in और into का यूज करके. Let's see the difference. First sentence and second sentence. The water is in the bottle. वाटर जो पानी है वो बॉटल के अंदर है. मतलब कोई चीज किसी चीज के अंदर, उसके लिए हम यूज करते हैं इन. एंड इन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉटल एंड देयर आर सम वाटर्स. ठीक है,
So this is a bottle, this is a bottle एंड वाटर उसके अंदर है। कोई चीज किसी चीज के अंदर कोई चीज हो उसके लिए हम यूज करते हैं इन। द वाटर इन द बॉटल। नाउ द second example, let's see. I am pouring the water into the bottle. pouring, I am pouring मतलब मैं डाल रहा हूं, गिरा रहा हूं। I am pouring the water, मैं वाटर जो पानी गिरा रहा हूं बॉटल के अंदर, मैं भर रहा हूं बॉटल के अंदर। So suppose there is something which we are doing in this, हम यहां से कोई चीज गिरा रहे हैं इसके अंदर, सो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं इनटू। ओके, सो इन मतलब अंदर में, स्टेबल, यस। इन का मीनिंग है हमारे पास, इन का मीनिंग है इनसाइड, कोई चीज किसी चीज के अंदर हो, इन, और वो स्टेबल हो, वो स्टेबल हो मतलब वो नॉर्मल पोजीशन में हो, उसमें मोशन ना हो, स्टेबल बोलते हैं। ठीक है, सो इन मतलब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो और वो स्टेबल हो, और इनटू का मीन्स है अंदर में कोई चीज हो लेकिन वो मोशन में हो, अंदर में कोई चीज हो बट इट विल बी ऑन मोशन। ठीक है, वो मोशन में होगी, सो उसके लिए हम यूज करेंगे इनटू। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। इन हम यूज करेंगे जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होगी, जैसे आई एम इन द रूम। ओके, यस, आई एम इन द रूम एंड स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, स्टूडेंट्स क्लास के अंदर है, बट अगर कोई उसके अंदर कोई मोशन में हो, फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स आर कमिंग इन टू द क्लास, यस, द स्टूडेंट्स आर कमिंग, वो लोग आ रहे हैं इनटू द क्लास, मतलब वो क्लास में है नहीं, वो क्लास में जा रहे हैं, कोई चीज मतलब मोशन में होगी, वो जा रही होगी, उसके अंदर डाल रहे होंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे इनटू। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। इन मतलब कोई चीज अंदर में हो बट स्टेबल हो, इनटू कोई चीज मोशन में होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राहुल इज इन द क्लास, यस, राहुल इज इन द क्लास, सिंपल, हमने यूज किया इन, मतलब राहुल क्लास में है। ठीक है, ये क्लास के अंदर है, राहुल इज इन द क्लास, राहुल इज कमिंग, राहुल इज कमिंग इन टू द क्लास, इन टू द क्लास मतलब यहां पे वो क्लास में है, क्लास में स्टेबल है, वो बैठा हुआ है किसी चीज के अंदर, क्लास में वो बैठा हुआ है, तो राहुल इज इन द क्लास। राहुल इज कमिंग इन टू द क्लास मतलब वो अभी है नहीं, वो जस्ट आ रहा है, वो एंट्री कर रहा है। सो इनटू, क्योंकि वो जो पर्सन है या ऑब्जेक्ट है वो मोशन में, मतलब वो आ रहा है, वो चीज अभी हुई नहीं है, जस्ट राहुल इज कमिंग इनटू द क्लास, सो हम यूज करेंगे इनटू। ठीक है, राहुल is coming into the class, Rahul is swimming in the river, Rahul is swimming in the river, in the river, okay, Rahul is swimming in the river, Rahul नदी में स्विम कर रहा है। ठीक है, Rahul is jumping into the river, Rahul is jumping into the river। ठीक है, so these are some examples where we can understand like how we are going to use in, when we are going to use in and into। राहुल इज इन द क्लास, वो क्लास के अंदर है, क्लास के अंदर बैठा है, यस। राहुल इज कमिंग इन टू द क्लास, वो क्लास में आ रहा है, वो क्लास के अंदर आ रहा है, एंड राहुल इज स्विमिंग इन टू द इन द रिवर, वो नदी में स्विम कर रहा है, तैर रहा है। राहुल इज जंपिंग इन टू द रिवर, राहुल नदी में जंप कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर जंप करने के लिए हम बोले तो सपोज दिस इज अ, यस, दिस इज अ रिवर and he is
he is jumping. Yes, he is jumping into the river, into the river. So we will use into. Okay, so these are some examples of in and into. There I want into his class. Okay, so let's take a look. Okay, so the children are going into the class. The children are in the class. चिल्ड्रेन क्लास के अंदर है, ठीक है. ओके, द चिल्ड्रेन आर गोइंग इनटू द क्लास. The children are going into the class, in the class and into the class. So we are going to use like this. Okay, कोई चीज अगर स्टेबल होगी, उसके अंदर कोई चीज है, तो हम यूज करेंगे इन. और अगर कोई चीज मोशन में होगी, स्टेबल नहीं होगी, वो चीज अभी हो रही होगी, लाइक आई एम पोरिंग द वाटर इनटू द बॉटल एंड द चिल्ड्रन आर गोइंग इनटू द क्लास. सो हम यूज करेंगे इनटू. Okay, so yes, why is she going into depression? I don't want to involve into your matter. मैं तुम्हारे मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता. Did he into the river? Did he jump into the river? Okay, so yes, this was about in and into. in का यूज क्या है और into का यूज क्या है, वो हमने देखा. ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा कि इन और इनटू कब यूज करना है. ठीक है, ओके, सो नाउ दिस इज क्लियर एंड यस, अब हम पढ़ेंगे बिटवीन एंड अमोंग. ठीक है, बिटवीन हम कब यूज करते हैं? बिटवीन, दिस इज वेरी सिंपल. ओके, बिटवीन दो चीजों के बीच में कोई चीज हो, उसके लिए हम यूज करते हैं बिटवीन. दो चीजों के बीच में अगर कोई चीज होगी, सो वी विल बी यूज बिटवीन, मतलब दो चीजों के बीच में. एंड अमोंग, दो से ज्यादा के बीच में. अमोंग दो से ज्यादा. दो से ज्यादा चीजों के बीच में, उसके लिए हम यूज करेंगे अमोंग. ठीक है, सो बिटवीन एंड अमोंग. बिटवीन दो चीजों के बीच में एंड अमोंग दो से ज्यादा चीजों के बीच में. दिस इज वेरी सिंपल. सो लेट्स टेक some examples, like the match will be played between India and Pakistan. Yes, the match will be played between India and Pakistan. मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा. ठीक है, मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा. मतलब दो लोग हैं, एक है हमारा इंडिया एंड दूसरा है पाकिस्तान. इंडिया एंड पाकिस्तान. सो उससे पहले हम यूज करेंगे बिटवीन. ठीक है, दिस इज द प्रीपोजिशन विच वी आर यूजिंग. सो दिस इज द प्रीपोजिशन जहां पे हम दो चीजों के बीच में अगर हम कुछ बता रहे हैं, उसके लिए हम यूज करेंगे बिटवीन. लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूं. आई सिट बिटवीन इमरान एंड राहुल. ओके,
दिस इज अ सेकंड एग्जांपल। आई सिट बिटवीन, बिटवीन प्रीपोजिशन इमरान एंड राहुल। सबसे पहले हमारा बिटवीन आएगा, उसके बाद जो दो चीजें होंगी दिस एंड दिस, दिस एंड दिस। ओके, द फाइट टूक प्लेस बिटवीन राम एंड राहुल। द फाइट टूक प्लेस, द फाइट FIGHT, fight took place between Rahul and Ram. The fight took place, जो लड़ाई हुई वो राहुल और राम के बीच में लड़ाई हुई। ठीक है, सो उसके लिए हमने यूज किया बिटवीन, बिटवीन यूज किया। ओके, दिस इज क्लियर? Yes. Distribute sweets among children. Distribute sweets, मिठाई बच्चों में बांट दो। Distribute sweets among children. Okay, fourth and fifth. डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमोंग, हमने यूज किया अमोंग, क्यों? क्योंकि दो से ज्यादा लोगों में बात हो रही है बांटने की, कि ये जो मिठाई है, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, जो मिठाइयां हैं उसको बच्चों में बांट दो। दो से ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, सो हम यूज करेंगे अमोंग। ठीक है, अमोंग। डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट अमोंग पियर, अमोंग पुअर पीपल। ब्लैंकेट जो कंबल है वो गरीबों में बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट among poor. Distribute blankets among poor. गरीबों में ब्लैंकेट बांट दो, among, among यूज किया। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हम among कब यूज करेंगे और between कब यूज करेंगे। between अगर दो चीजों में किसी चीज की बात हो रही है तो हम बिटवीन, और अगर दो से ज्यादा लोगों में बात हो रही है तो अमोंग। ठीक है, सो लेट्स डू सम एक्सरसाइज। ओके, सो टेक ए लुक। ओके, सो यहां पे लिखा है हमने बिटवीन दो चीजों के बीच में एंड अमोंग दो से ज्यादा चीजों के बीच में। सो लेट्स डू सम एक्सरसाइज। ओके, मैं रानी और राज के बीच में बैठा हूं। ठीक है, कैसे बनाएंगे? लेट्स मेक सेंटेंस। आई एम सिटिंग बिटवीन रानी एंड राज। मैं रानी और राज के बीच में बैठा हूं। बिटवीन हमने यूज किया क्योंकि दो नेम है, टू पीपल है, सो हमने इसलिए यूज किया बिटवीन। ओके, एंड सेकंड, इंदौर इज बिटवीन उज्जैन एंड खांडवा। इंदौर उज्जैन एंड खांडवा के बीच में। ठीक है, सो यहां पे भी दो चीजें हैं। इंदौर इज बिटवीन उज्जैन एंड खांडवा, खांडवा। ओके, सो हमने यूज किया बिटवीन क्योंकि ये दो चीजों की बात हो रही है, दो चीजों के बीच में कोई चीज है। ओके, पैसा दो टिकट के बीच में रखा हुआ है। पैसा दो टिकट के बीच में रखा है। द मनी इज केप्ट बिटवीन टू टिकट्स। पैसा दो टिकट के बीच में रखा हुआ है, बिटवीन टू टिकट्स। ओके, सो दीज आर सम सेंटेंसेस। ही इज ऑन बिटवीन यश एंड रेहान। वो यश और रेहान के बीच में है। ही इज ऑन बिटवीन यश एंड रेहान। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ बिटवीन। नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अबाउट अमोंग। ठीक है, ये मिठाइयां बच्चों में बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स
among children. ये मिठाइयां बच्चों में बांट दो. And I saw a bird among trees. Among trees, मैंने चिड़िए को पौधों के बीच में देखा. I saw a bird, मैंने एक चिड़िया देखा. Among trees, trees जो पेड़ है उसके बीच में. The pencil fell on among the books. पेंसिल बुक के बीच में गिर गई, किताबों के बीच में पेंसिल गिर गई. The pencil fell off among the books. The old temple is among the trees. The old temple, पुरानी मंदिर है. The old temple is among the trees. पेड़ों के बीच में है. ओके. The book was kept among 3 boxes. जो किताब है वो 3 बॉक्सेस के बीच में रखी हुई है. The books are kept among 3 boxes. Among. So हमने यूज किया among, मतलब 2 से ज्यादा चीजें अगर होंगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे among. ओके. बिटवीन 2 and among more than 2. 2 से ज्यादा, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, और कितने भी हो सकते हैं. ठीक है. सो वी विल यूज among. And then let's talk about the inside. Yes, inside and outside. Yes. So take a look. Okay, so now we are going to talk about inside and outside. Okay, inside. This is inside and outside. This is outside. Okay, inside मतलब अंदर की तरफ और अंदर की ओर, अंदर. ठीक है. इनसाइड अंदर की तरफ. अंदर की तरफ और प्लीज कम इनसाइड. यस, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ और मतलब ये और अंदर की तरफ, अंदर की ओर. और आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ. आउटसाइड बाहर की तरफ. सो इनसाइड हम बोलते हैं, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, अंदर. एंड आउटसाइड बाहर की तरफ, बाहर. ओके. सपोज इनसाइड, दिस इज द रूम, दिस इज द बिल्डिंग एंड देयर इज समवन. वी विल से इनसाइड एंड देयर इज बिल्डिंग एंड समवन इज देयर. ओके. सो दिस इज आउटसाइड एंड दिस इज इनसाइड. किसी चीज के अंदर कोई चीज है, इनसाइड अंदर की ओर है, अंदर की ओर. एंड आउटसाइड बाहर की ओर, बाहर. ठीक है. इनसाइड एंड आउटसाइड. सो बाहर की तरफ, बाहर, अंदर की तरफ. इनसाइड अंदर की तरफ. लेट्स सी, लाइक वी आर सेइंग लाइक प्लीज कम इनसाइड. अगर कोई दरवाजे पे है या बाहर है तो हम उससे बोलते हैं प्लीज कम इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ आ जाओ, अंदर आ जाओ. प्लीज कम इनसाइड. प्लीज कम इनसाइड. हमने बोला प्लीज कम इनसाइड, प्लीज अंदर आ जाओ, अंदर की तरफ आ जाओ, मतलब अंदर आ जाओ. देखो बाहर था, इसको हमने बुला लिया अंदर, अंदर आ जाओ. द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इनसाइड. बच्चे खेल रहे हैं. द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इनसाइड. बच्चे अंदर खेल रहे हैं. द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इनसाइड अंदर खेल रहे हैं. द क्लोथ्स आर इनसाइड द अलमीरा. कपड़े अलमीरा के अंदर है. द क्लोथ्स आर इनसाइड द अलमीरा. वी आर इनसाइड द ऑफिस. हम लोग ऑफिस में हैं. वी आर इनसाइड द ऑफिस. हम लोग ऑफिस में हैं. इनसाइड द ऑफिस.
अंदर की तरफ है, इनसाइड द ऑफिस अंदर की तरफ है. सो दीज आर सेंटेंसेस वेयर वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज इनसाइड. ठीक है. नाउ लेट्स सी आउटसाइड. आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ और बाहर. आई एम आउटसाइड ऑफ योर आई एम आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस. लाइक हम कभी कभी बोलते हैं आई एम आउटसाइड ऑफ ऑफिस. आई एम आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस. मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर हूं. आई एम आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस. ओके. सो दिस इज आउटसाइड. आई एम आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस. मैं आपके ऑफिस के बाहर हूं. ऑफिस के बाहर हूं. ठीक है. आउटसाइड बाहर की तरफ हूं. आउटसाइड ऑफ ऑफिस. आई एम आउटसाइड द हाउस. मैं घर के बाहर हूं. आई एम आउटसाइड द हाउस. आई एम आउटसाइड द हाउस. मैं घर के बाहर हूं. ठीक है. आई एम आउटसाइड. ही इज आउटसाइड ऑफ हिज कंट्री. वो अपने कंट्री के बाहर. ही इज आउटसाइड ऑफ हिज कंट्री. आई एम आउटसाइड द होम. एंड द स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले आउटसाइड. द स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले आउटसाइड. बच्चों को बाहर खेलना पसंद है. द स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले आउटसाइड. वी वेंट टू यूनिवर्सिटी आउटसाइड द सिटी. ओके. वी वेंट द यूनिवर्सिटी. हम यूनिवर्सिटी के हम गए यूनिवर्सिटी जो कि सिटी के बाहर थी. वी वेंट टू यूनिवर्सिटी. हम यूनिवर्सिटी गए जो कि आउटसाइड द सिटी, जो कि सिटी के बाहर थी. सो दीज आर द एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इनसाइड एंड आउटसाइड. इनसाइड मतलब किसी चीज अंदर की तरफ, अंदर की ओर. एंड आउटसाइड बाहर की तरफ, बाहर. आई एम आउटसाइड द ऑफिस. आई एम आउटसाइड ऑफ द होम. आई एम आउटसाइड द हाउस. ठीक है. सो ये सारे हमारे प्रीपोजिशंस हैं. ऑल दीज आर प्रीपोजिशंस. एंड नाउ लेट्स टेक ऑन. पर जो स्टेबल हो. ठीक है. सो टेक ए लुक. ओके. ऑन पर स्टेबल. ऑन टू पर इन मोशन. ओके. सो ऑन का मीनिंग है हमारे पास. ऑन मतलब पर. ठीक है. ऑन हम यूज करते हैं पर, जो कि स्टेबल होता है. और ऑन टू का भी यूज करते हैं हम. ऑन टू. ऑन टू का मीनिंग भी पर है, जो कि मोशन के लिए होता है. जैसे अभी हमने पढ़ा है इन और इनटू को. इन मतलब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो, और इनटू वो मोशन में हो, आ रही हो रही हो. जैसे इसी तरह से ऑन है. ऑन लिखना था मुझे ना, मैंने गलती से कुछ और लिख दिया. ऑन. ठीक है. ऑन. यस. ऑन. ऑन. ऑन मीन्स पर. एंड ऑन टू मतलब पर. ये स्टेबल होगा. ऑन टू मतलब मोशन में होगा. लाइक डायग्राम, टेबल. ओके. सो यस, वी कैन मेक एनी टेबल लाइक ऑन मतलब पर. सो लेट्स टेक एग्जांपल. किसी और जगह से टेबल पर कोई चीज आ रही हो, सो उसको हम बोलते हैं ऑन टू. सपोज ये एक टेबल है. ठीक है. एंड यहां से कोई चीज आ रही हो इस पर, सो हम उसके लिए यूज करेंगे ऑन टू. इसी तरह से इन टू में भी था. ठीक है. सो सपोज द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. ठीक है. ये टेबल है, ये हमारा टेबल है, इस पे कैट बैठी है. द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. ठीक है. ऑन हमने यूज किया. ऑन मतलब पर. द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. जो बिल्ली है, ये जो बिल्ली है वो टेबल पर बैठी है, आराम से बैठी है. ठीक है. सो द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. बिल्ली टेबल पर बैठी हुई है. हमने ऑन यूज किया. अब फॉर एग्जाम्पल द कैट इज जंपिंग. द कैट इज जंपिंग
ऑन टू द टेबल, हम यूज करेंगे ऑन टू द टेबल, ठीक है। ऑन टू क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहां पे हमारा जो टेबल है, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है एंड यहां से वो बिल्ली छलांग लगा रही है, ये बिल्ली यहां से छलांग लगा रही है टेबल के ऊपर, वो स्टेबल पोजीशन, ये जो है स्टेबल पोजीशन पे, इट मींस द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, वो टेबल पर बैठी है एंड दिस इज फॉर मोशन, हमने बताया ये स्टेबल के लिए, ये मोशन के लिए, जहां पे कोई मोशन हो रहा होगा, मतलब वो अभी है नहीं। द कैट इज जंपिंग ऑन टू द टेबल, जो बिल्ली है वो जंप कर रही है टेबल पर, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन on and on to, okay, yes, the cat is jumping onto the table, वो टेबल पर जंप कर रही है। फॉर एग्जाम्पल द पेन इज on my palm, yes, the marker, you can say the marker, the marker is on my palm, मेरे हाथ पे marker, and I am throwing the marker onto my palm, I am throwing the marker onto my palm, yes, so अगर मैं ऐसे बोलूं कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, सपोज दिस इज अ मार्कर, द मार्कर इज ऑन माई palm, ये भी है स्टेबल है, रखा हुआ है, आई एम थ्रोइंग द मार्कर onto my palm, onto my palm, onto my palm, yes, this is onto, and the book is on the table, the book is on the table, ये book टेबल पर रखा हुआ है, द बुक इज ऑन द टेबल, आई एम थ्रोइंग द बुक, आई एम थ्रोइंग द बुक ऑन टू द टेबल, आई एम थ्रोइंग द बुक ऑन टू द टेबल, यस, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड ऑन टू, ऑन एंड ऑन टू। सो नाउ वी लर्न लॉट्स ऑफ प्रीपोजिशंस टुडे, like we learn about in and into, between, among, inside, outside, on and on to. Yes, so this was the second class where we also learn lots of things, and tomorrow also we are going to talk about the prepositions. Yes, because there will be 3 classes which is dedicated only for prepositions. So I hope you learn lots of things in today's class, and you love to watch all these videos. So just I would like to say, keep learning, keep growing, and be 1% better in your life. So thanks for today.